So hello everyone, this is the first ever video of my YouTube channel Tawarik, and I will be starting the PYQ series. Mine paper was history, so from the scratch I will be discussing how to clear UGC NET June 2026 attempt. Before going into the video, I am Akanksha Manna and I have qualified UGC NET December 2025 with 180 marks and 88.0859536 percentile. Qualified for assistant professor and admission to PhD. This is the result that I have got after the revised result given by NTA after 2 months after the supreme competition and everything. So finally I have cracked, and this was my 4th attempt. This is actually the shocking part, that this was my 4th attempt, and before, in all my previous 3 attempts, I was not being able to qualify for even PhD, that was category 3. So in the 4th attempt I have qualified NET. This is actually shocking for me as well, when I was not even able to qualify in my first, in my second, in my third attempt, even after rigorously preparing for everything. But what was the game changer for me was the PYQ and the syllabus addition and the syllabus analyzing, because every exam, if every competitive exam, PYQ is the most important thing. Why? Because PYQ रिकरिंग होता है, आपको टॉपिक्स पता चलते हैं, आपको पैटर्न पता चलता है, एंड आपको एग्जामिनर का थिंकिंग पता चलता है. नेट UGC NET exam is actually a probability one, like you don't know what will come in the exam, but there are few questions that will definitely come. So in this video I have covered only 3 because there are a lot of questions that will be coming, and I will be covering in another videos. So the first question was the second year plan. So second year plans was आया था June 2028, June 2018, June 2011 in paper 2 and December 2011 in paper 2. The second 5-year plan, which aimed at accelerating economic growth under the state assuming leading role, was also known as the PC Mahalanobis plan, and in this there was the question in assertion and reason. So assertion was this and the reason was this, and in this the Nehru Mahalanobis. So the Nehru and the Mahalanobis was the 2 people who have given this second year plan. And next question was the JB Bury. So there are few authors which will come every time. In June 2013, the paper 3rd, the JB Bury. So the definition was history. The definition of history, what was that? In this attempt was same, January 2017, the paper 3rd, and in June re-exam 24. So re-exam was basically because the NTA exam was conducted in June and the paper was leaked, so in August. So this was the August attempt, you can see 29 August को exam था, and this was the question. So who among the following said that history is only science, nothing more or nothing less? So that was the answer, JB Bury. The EH car and the RJ Collingwood, ये भी आते हैं but not so much, है ना, but you have to know that what was the answer for that, what was his definition actually. And the next question was the founder of the Indian Asian for the cultivation of science. So this answer, who established in 1876, so Mahendra Lal Sircar. So इन क्वेश्चन से आपको और भी चीज़ें पता चलती हैं, लाइक द फर्स्ट जून 2023 में ये क्वेश्चन आया था, जून 2011 के पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया था, एंड दैट हु फाउंडेड, सो आंसर वाज द महेंद्र लाल सरकार. एंड अक्टूबर 2020 में जो क्वेश्चन आया था, लाइक हु एस्टेब्लिश्ड ऑन January 15, 1876, सो द आंसर वाज डी, द महेंद्र लाल सरकार. ओके, सो इससे हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं. द फर्स्ट थिंग, हु फाउंडेड, obviously him, and in which year and the date. So January 15. So जब आप नोट्स बनाए तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि जैसे आपने ये लिख दिया, द फाउंडर द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस. तो आपने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा इंडियन कल्टिवेशन का, एंड देन यू हैव रिटन
कि ये डेट पे हुआ था, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, एंड अगर आपको और कुछ पॉइंट्स मिले तो आप उनको लिख सकते हैं। सो द फाउंडेड, एस्टेब्लिश, ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं कि इसमें से दोनों कुछ भी पूछ सकते हैं। और किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए था? साइंटिफिक एजुकेशन एज ए की टू नेशनल इम्प्रूवमेंट। इन क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हैं कि जैसे E.H. कार का है तो इसमें कौन सा उन्होंने लिखा था? ऑल हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ थॉट। ये R.J. कॉलिंगवुड का कौन सा था? हिस्ट्री, व्हाट इज़ द हिस्टोरियन राइज, हिस्ट्री इज़ एन एंडलेस डायलॉग बिटवीन द। इसमें से आप ऑक्सफोर्ड का, ट्रैवलन का देख सकते हैं। ओके, टॉइनबी का आप देख सकते हैं। टॉइनबी का भी क्वेश्चन आता है बिकॉज हिस्टोरियोग्राफी जो आपका यूनिट 10 है उसमें आता है, उसमें एक है आर्नोल्ड टॉइनबी का, तो आप उसके भी जो स्टेटमेंट्स हैं आप उसको देख सकते हैं। सो ये जो 3 क्वेश्चंस थे ये मैंने एज एन एग्जांपल लिए हैं कि आपको PYQ क्यों देखना है, बिकॉज दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द रिकरिंग थिंग दैट वाज कमिंग इन योर एग्ज़ाम। ओके, आप अब इन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं? सो द फर्स्ट थिंग इज़ UGC नेट हिस्ट्री 11 या PYQ। ये जो बुक है ये PW ने पब्लिश किया है एंड मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो इसकी मैं आपको 2 चीज़ें बता सकती हूँ कि या तो आप बुक ख़रीद लीजिए, ओके, या फिर आप एक पेड PYQ का सीरीज़ ख़रीद लीजिए। मैंने टेक्स्ट बुक का लिया था एंड PW दोनों का लिया था अपने दिसंबर अटैम्प्ट में, ओके। एंड इस बुक, पहले मैं आपको बुक का एक्सप्लेन करती हूँ, देन मैं आपको टेक्स्ट बुक के ऐप का एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कैसे नेविगेट करना है। इफ़ यू कैन परचेज दैन यू कैन, अदरवाइज देर इज़ नो लाइक सिग्निफिकेंटली एक्सेसिबल अगर है तो ठीक है, नहीं तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो इस बुक में क्या था कि इसमें मैंने लिख दिया था, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन मैंने बुक ले ली थी। आई गेस मैंने ये मार्च में पब्लिश हुई थी, जब दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हो गया था तो मैंने ये आई गेस मार्च में पब्लिश हुई थी, तो अप्रैल या जून में मैंने ये परचेज़ कर ली थी, ओके। सो इसमें क्या था कि दिसंबर 2024 में तो 100 क्वेश्चन थे। अब इसमें ना आपको जैसे ये 14 पार्ट्स दिख रहे होंगे, जैसे प्री हिस्ट्री से वैदिक, 6th सेंचुरी BC से मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। तो ये ना पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे 10 यूनिट्स हैं बट इसमें 14 पार्ट्स हैं, तो आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं? यहाँ 1 2 3 4 इज़ फॉर द एंशियंट हिस्ट्री, 5th is the early medieval history is the 6th 7th 8th 9th, modern is 10 to 13 and historiography is for 14th part। और ये जो नंबर्स लिखे हैं ये इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 2014 से लेके 2024 तक कितने क्वेश्चंस इसमें आए हैं। एंड जस्ट बी वेरी केयरफुल, दिसंबर 2024 का क्वेश्चन इन 14 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, इसका अलग से पेपर है ये वाला, ओके। तो इसमें मैंने लिख दिया था कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ये 6th वाले में आता है, ये 13th में आता है बिकॉज ये नेशनल मूवमेंट का पार्ट है। WH मोरलैंड के बुक्स के बारे में बोला गया था कि कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं, तो ये 14th वाले में आएगा, ओके। सो 14th वॉज द हिस्टोरियोग्राफी, 13 वॉज द नेशनल मूवमेंट। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसमें 2024 जून तक का है, ओके, री एग्ज़ाम तक का इसमें है। तो आप इसमें जो बाकी के PYQ है उसमें आपको दोबारा से प्रिंट करा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप फोटोकॉपी की शॉप पे जाके उनको करवा सकते हैं। सो इसमें आपको दिख जाएगा जैसे प्री हिस्ट्री से लेके वैदिक में एंशिएंट का इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2201 क्वेश्चन आए थे, 200 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप इसको अभी से स्टार्ट करेंगे करना, तो अगर आप दिन के भी कम से कम भी 100 200 300 जितना भी आप टारगेट बनाएं, अगर आपका जून का एग्ज़ाम है एंड अगर आपने PYQ स्टार्ट अभी तक नहीं किया है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका थ्योरी एंड रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो। सो इसमें आप देख सकते हैं जैसे, और ये बुक मैं इसलिए भी रेफ़र करने को बोलूँगी क्योंकि इस बुक में जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत अच्छा है। आपने जो अपने नोट्स में नहीं लिखा होगा उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, इसका आंसर 1843 था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1843 आउटलेट स्लेवरी इन ब्रिटिश इंडिया। देन 1843 के बारे में आपको एक्स्ट्रा दिया है। देन नेक्स्ट द फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड जो एक्ट पास हुआ था वो 1870 में हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। दैन द थगी एक्ट वॉज इन द 1836। तो इसमें 2-3 लाइन्स आपको एक्स्ट्रा मिली हुई हैं जिससे आपको समझ आ सके। दैन द स्लेवरी the first anti-slavery society, the next question in Britain, so that the answer was the 1833, okay, 1820 में स्टार्ट हुआ था
बट 1833 में वो फाइनली हो गया था एंड ऑफिशियली जो हुआ था वो 1838 में हुआ था। दैन द संथाल रिबेलियन, तो मैंने यहाँ पे पहले पढ़ के फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। ट्राइबल के क्वेश्चंस हुए या पीजेंट के क्वेश्चन हुए, इनके जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आते हैं। क्रोनोलॉजी इज़ द मोस्ट लव पार्ट ऑफ द एनटीए, तो क्रोनोलॉजी आएगा। ओके, सो आप इनको ये यहाँ पे लिख के आप इनको रिवाइज़ कर सकते हो, जब भी आप इन पेपर्स को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ईजी होगा। और मैंने इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा की थी कि मैंने जैसे दिल्ली सल्तनत, एंशियंट, अर्ली मिडीवल एंड हिस्टोरियोग्राफी, मुगल, मिडीवल, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी, मैंने ये 2 हाइलाइटर यूज़ किए थे। ये क्रेयॉन वाले हाइलाइटर आते हैं फेबर कैसल के, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। तो जब भी मुझे पढ़ना होता था, जैसे इन पार्ट्स में से कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रीन में होगा, ये वाला ब्लू में है, ये वाला ब्लू में है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाता है। ओके, सो इस बुक में एक आप कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे एडिटिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये 7th क्वेश्चन है, हमारा 7th क्वेश्चन है मैच द लिस्ट ऑफ द पंजाब हिंदू महासभा, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत है। ये अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, आई डोंट नो, बट ये गलत है। तो ये आपको खुद से ही देखना होगा कि सत्याग्रह कब हुआ था, ऑल इंडिया महासभा कब हुआ था, तो ये आपको क्वेश्चंस के आंसर देखने होंगे। एंड इवन यू आर लुकिंग फॉर दिस बुक, आपको जो ऑफिशियल आंसर की है यूजीसी नेट की वेबसाइट पे होता है, आपको बस लिखना होता है यूजीसी नेट। जस्ट सपोज़ मुझे दिसंबर का आंसर की देखना है, तो मैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 हिस्ट्री आंसर की लिखूँगी, तो वो वेबसाइट पे ऑब्वियसली आ जाएगा। तो आप उनसे भी रेफ़र ज़रूर कीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या है। द सेकेंड थिंग इज़, ये फर्स्ट चैप्टर है प्री हिस्ट्री से वैदिक एज का। तो प्री हिस्ट्री में क्या था, जैसे प्री हिस्ट्री से लेके वैदिक एज के जितने भी क्वेश्चन है, सपोज़ इसमें क्या था कि 201 क्वेश्चन है, तो ये इसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन है यहाँ तक। तो इसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें जैसे मैरिज अलाइंस का क्वेश्चन था, तो हमें आंसर पता है अनुलोम प्रतिलोम, तो अनुलोम के बारे में आपको डेफिनेशन दी गई है कि अगर आप बाई चांस आप भूल गए हैं या फिर आपको स्टक नहीं हो रहा है या फिर आपको याद नहीं है, मतलब कोई भी रीज़न है, तो उसकी वजह से आप इनके आंसर्स को देख सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा ना कि आप बुक को कर रहे हैं बेसिकली रेफ़र, और एग्ज़ाम से पहले जो फ्री में अगर आपको करना है तो यूजीसी नेट की जो अभ्यास का है उसमें आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। सो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आपको इसमें डायरेक्ट मिल जाएंगे, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बस इसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगी या फिर एक्सप्लेनेशन होगा कि क्या है। जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन है, तो कुरु पांचाल का एरिया एसोसिएटेड था, विदर्भ जो है वो साउथ वेस्ट में था, तो इससे आपको लोकेशन भी पता चलेगा। तो जब आप नोट्स बनाएं, पीवाईक्यू की भी अलग से नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 प्रिंसिपल आर्यन ट्राइब्स, पंचयज्ञ, तो अब ये पंचजनों वाला जो है इसमें ये 5 थे, इसमें आपके क्वेश्चंस आए थे। ओके, देन ये आगे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इसमें आपको, और उसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे डील करना है। मैंने इसमें हाईलाइट कर लिया था जो भी आंसर्स थे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली लास्ट में तो रिवीजन का टाइम होता नहीं है, तो मैंने क्या किया था, मैंने पीवाईक्यू के इसमें से हाईलाइट कर लेते जो आंसर, जैसे तक्षण को कारपेंटर कहते हैं, बट ये जो नोबल, विलेज हेडमैन और चैरिटर है, आपको इनको भी देखना होगा कि इसको क्या कहते हैं। इसमें तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको अलग से जाके एंशिएंट इंडिया के वैदिक वाले पार्ट में जाके आपको देखना होगा कि नोबल को हम क्या कहते थे, विलेज हेडमैन को क्या कहते थे, चैरिटर को क्या कहते थे, तो आपको तभी समझ आएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक क्वेश्चन एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। अभी मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया था कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ओके, सो ये तो यहाँ तक था कि आप कैसे बुक से कर सकते हैं, एंड आपको ये बुक आई गेस अंडर 500 आपको मिल जाएगी, 500 और 600। और ये जो है मैंने जो पेड पीवाईक्यू लिया था वो टेक्स्ट बुक से लिया था और पीडब्ल्यू से लिया था। सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पेड वाला कैसे नेविगेट किया था। इसमें बेसिकली जैसे यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन, यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें दिख जाएंगी, आपको लॉगिन करना होता है वहाँ पे दिख जाता है। ये मेरा होम पेज है, इसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि कहाँ पे आपको करना है। तो मेरे टाइम पे क्या था कि मेरे टाइम एज इन दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम के लिए मैंने इस टेक्स्ट बुक के सब्सक्रिप्शन को परचेज़ किया था, आई गेस अक्टूबर या नवंबर में। उससे पहले भी किया था, वो मेरा एक्सपायर हो गया था। एंड इस वाले दोबारा से JRF के लिए ऑब्वियसली करना है, तो मैंने दोबारा से सब्सक्रिप्शन लिया है अभी मार्च में ही। सो मार्च में
ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था ना, ये पहले एलीट था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता था पास एलीट करके, जैसे अभी सिर्फ इसमें पास दिखेगा। तो मैं इस पर गई। अगर आपको परचेज़ करना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 615 इसमें है, आप इसमें परचेज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आई एम नॉट टेलिंग यू जस्ट परचेज़ इट नहीं, बट मैं इसका एक बेनिफिट पार्ट दिखाऊंगी जो मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा था। सो जैसे ये मैं यहाँ पे गई, तो यहाँ पे मुझे ना, आपको अगर आपको कोचिंग लेनी है तो डिपेंड्स ऑन यू, मतलब एवरीथिंग इट्स इन योर पॉकेट्स अगर करना है तो जैसे मेरा ये इंटरफेस खुल गया, आपने परचेज़ कर लिया, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके कितने डेज़ बचे, से 426 डेज़ मेरे बचे हुए हैं। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है और एक टेस्ट सीरीज़ है। तो मैं प्रीवियस ईयर पे ना जाके, लाइक यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हैं, मैं जाऊँगी सीधा टेस्ट सीरीज़ पे। टेस्ट सीरीज़ में मैं देख सकती हूँ, जैसे ये मेरा रिसेंट टेस्ट सीरीज़ है, मैंने अभी अटैम्प्ट करना शुरू नहीं किया है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2, ओके, एंड हिस्ट्री एंड पेपर 1, तो मैं इस पे गई। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे मैंने सिर्फ एक ही अटैम्प्ट किया था एंड वो मार्च 31 को अटैम्प्ट किया था, तो मेरे 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 सही थे। तो मैं इसमें सॉल्यूशन और एनालिसिस दोनों देख सकती हूँ। हमने पेपर 2 हिस्ट्री पे सिलेक्ट किया, पेपर 2 पे सिलेक्ट किया, मेरा हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे आएगा। तो इसमें आपको ना 2 जैसे दिखेगा कि मैंने आज अटैम्प्ट किया, मैंने री अटैम्प्ट किया, ओके। सो मैं इसके सॉल्यूशंस पे गई। अब इन सॉल्यूशंस में मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ क्या गलती किया। जैसे फर्स्ट का आंसर मैंने नहीं दिया है, मैंने थर्ड का दिया था, तो मैंने उस टाइम पे जो आंसर दिया था वो 10 दिया था। अब मैं इसको देख सकती हूँ कि मैंने क्या गलती की थी, राइट। अब मैं इस पर री अटैम्प्ट का कर दूँगी तो मुझे दिख जाएगा कि 7 है, हाँ ठीक है। मैंने पहले वाले में क्या किया था, ये वाला, योर फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पे आपको लिख के दिखाएगा। ये वाली ना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो। जैसे इसमें तो मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है, मैं एक आपको नया पेपर अटैम्प्ट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने दिसंबर का जो पेपर हुआ था मैंने उसको किया है, जो कि जनवरी में हमारा हुआ था, 10 जनवरी को, ओके। सो इस वाले में मैंने पेपर ओपन करते ही सबमिट कर दिया। आपको रियल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए ही है। पीडब्ल्यू में भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता। सो मुझे टेक्स्ट बुक इस चीज़ में बेटर लगता है। इसमें आपको यहाँ ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं किया है तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बच्चों ने कर रखा है। लीडर बोर्ड आप तब देखते हैं जब आपने जेन्युइनली खुद से प्रिपेयर करके दिया होता है एग्ज़ाम, ओके। सो इस वाले में आपका ना देखो, री अटैम्प्ट मोड का मतलब क्या है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया, अब मेरे पास टाइम तो बिल्कुल कम है। अब मैं तो बैठूंगी नहीं कि मैं 3 घंटे पेपर दूँ, उसके बाद मैं 6 घंटे उसको एनालाइज़ करूँ, क्योंकि आपको पेपर एनालाइज़ करने में बहुत टाइम जाता है। तो आपने स्टार्ट किया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि किसने डिस्ट्रक्शन किया था नालंदा और विक्रमशिला का, दिस इज़ ईजी, बख्तियार खिलजी, ओके। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे को दिख गया कि हाँ मैंने आंसर क्लिक सही किया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको इसमें से पॉइंट्स नहीं आते हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। कबाचा, यल्दुज़ एंड इल्तुतमिश, इनके भी पॉइंट्स हैं। अगर आपको नहीं आते, अगर आपके नोट्स में नहीं है तो आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, संस्कार को हमें इसमें क्रोनोलॉजी में करना है कि बिफोर बर्थ से पहले क्या आता है। तो मैंने रैंडमली जैसे सी कर दिया, बट मेरा आंसर गलत है, तो इसमें आएगा कि 62% ने सही किया है। ये आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये आपका इतना वो नहीं है, आपको अपने पे फोकस करना है। आपको BDE देखना है, तो BDE क्या था, BD एंड E, चूड़ाकरण नहीं आता एंड जाटकरम नहीं आता। जाटकरम तो बालों का होता है, नहीं होगा, ठीक है। देन इस क्वेश्चंस में मैंने इस पे कर दिया, बट इसका आंसर ये था जो कि पैरोग्रेटरी जो सुल्तान्स थे उनमें क्या एसोसिएट नहीं होता था, तो वो मॉस्क को कंस्ट्रक्शन करना नहीं होता था। ऐसे ऐसे करके आप सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ओके। ये तो आपका हो गया पेड वाला, राइट। अब मैं चाहती हूँ, जैसे मुझे करना है UGC नेट मॉक, ठीक है। मैंने इस पे लिखा, आपको यहाँ पे जो NTA की NTA अभ्यास करके है ये आ जाएगा, ठीक है। आपको NTA अभ्यास लिख देना है, वो आपके पास आ गया एंड ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। मैं होम पे गई, यहाँ मैंने मॉक टेस्ट पे क्लिक किया।
मैंने यहाँ पे यूजीसी नेट किया। ये आपका फ्री वाला है, अगर आपके पास नहीं है तो जैसे आपको अटेम्प्ट देना है बट आपके पास बुक है और आप इसको देखना चाहते हैं, तो जैसे मैं गई हिस्ट्री पे, हिस्ट्री ओके। सो 14-15, जैसे मैंने 15 का किया, मैंने स्टार्ट किया मॉक टेस्ट। आपका जो एग्ज़ाम के टाइम पे भी हॉल पे जो आपको इंटरफेस दिखता है अपने कंप्यूटर पे, वो ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड डालना होता है, आईडी में आपका रोल नंबर ऑलरेडी रहता है, पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैंने लॉगिन किया, मैंने यहाँ से लैंग्वेज चेंज किया, मुझे इंग्लिश से करना है तो मैंने इंग्लिश किया। देन मैंने यहाँ पे टिक किया, प्रोसीड किया, राइट। अब ये आ गया जैसे फॉसिल का एविडेंस क्या है, तो मैंने यहाँ से अटैम्प्ट किया। मैंने फिर यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शंस ना दिखते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आपको ये 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें श्योरिटी नहीं है तो मैं इस पर कर दूँगी सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, एंड मार्क फॉर रिव्यू फॉर नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे आपने बस मार्क कर दिया और आपको नहीं पता, मैं इस पर सेव कर दूँगी तो ये मेरा आंसर ना हो जाएगा कि हाँ मैंने आंसर दिया है। अगर मैंने सिर्फ इस पर क्लिक करके और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो इट मीन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया, मतलब मैं इससे बाद में जाके देखूंगी। अगर आप आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू पे करते हैं तो वो इवैल्यूएशन के लिए देखा जाता है। मान लीजिए जैसे लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा, इस क्वेश्चन पे गए, अब आपने इसमें सीधा सेव एंड नेक्स्ट किया, ओके। मैंने इसमें ऑप्शंस चूज़ नहीं किया था तो मैंने इस पर भी ऐसे कर दिया, तो ये मार्क फॉर रिव्यू वाले आ जाते हैं ऑप्शंस। देन 4th पे गई, मुझे इसका भी नहीं आता, मैंने इस पे करके ये कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको दिखेगा मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं, राइट। ये जून 2015 का एग्ज़ाम है, तो उस टाइम पे 75 क्वेश्चन आते थे। ये आपका पेपर 3rd है, पेपर 2 में आपके अलग क्वेश्चन आते थे, ओके। उसमें भी 50 अराउंड क्वेश्चन आते थे, 50 और मे बी 70 अराउंड, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। सो ये आपने कर दिया एंड इसके बाद आपने इसको सबमिट कर दिया तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं अपना रिज़ल्ट देखूंगी कि मेरा एक सही है बाकी की गलत है। आप ये सारा पेपर अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी क्या क्या गलती है क्या नहीं है। बट इसमें आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपके इसमें कितने अटैम्प्ट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ समझना है कि कितने क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया जाता है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर क्या है, तो आप इनको सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो, ओके। जैसे इसमें लास्ट जो है वो 17 का है, राइट। 17 से पहले वाले आपको दिख जाएंगे, 17, 16, 15, 14, राइट। उसके आगे के क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने के लिए वहीं से या तो आपको प्रिंट करा के करना होगा या फिर आपको खुद से देखना होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो आपके ऊपर है, अगर आपको टेक्स्ट बुक का करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको पीडब्ल्यू का लेना है तो पीडब्ल्यू भी आप देख सकते हैं। मेरे पास राइट नाउ सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट दैट्स इट। एंड अगर आप बुक परचेज़ करते हैं तो आपके ऊपर है, टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। इट्स एवरीथिंग, इट्स इन योर हैंड, योर पॉकेट, आपको उसी को देखने करना होगा। बट PYQ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपने देखा होगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।